Whenever we thought about USA, United States of America, whenever we discuss with someone about USA, हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, स्काई स्क्रैपर्स ऑफ यूएसए, द न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, द मियामी बीच, and about high quality education. So today in this video we'll cover how you can study for free in USA in top ranking universities, top 10 ranking universities in the world. So we'll see everything one by one. So आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, just because video is very interesting. If you like, so आप बने रहिए. Hello students, my name is Saurabh Madame and I usually create videos on study abroad and international education. In this video, I will cover how you can study for free in the USA, United States of America, which is completely free. Why do so many people come to USA for their higher education, for their bachelor's, master's and PhD studies? Due to top 10 ranking universities from all over the world, which is based in the USA, right? So, we'll cover the process, how to study for free in the USA, what are the requirements, criteria, eligibility criteria, scholarship process, what are the scholarships that are available for international students that you can avail for fully funded scholarship or partially funded scholarship as admission in the USA. So let's see. Look top 10 universities in the world which comes from USA. Here you can see the rank of universities. First rank is University of Oxford from United Kingdom. Second, California Institute of Technology, Harvard University, Stanford, University of Cambridge, MIT, Princeton University, University of California, Yale University and University of Chicago. Top researchers and professors work करते हैं USA की यूनिवर्सिटीज़ में. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी ग्रेजुएट्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है उसमें वर्क करते हैं, लाइक फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स. देर आर सो मेनी कंपनीज. बहुत सारे सीईओज भी आपने सुना होगा ऑलरेडी जो कि ग्रेजुएटेड है यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज से. सो यूएसए यूनिवर्सिटीज कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू फॉर पार्शियली फंडेड एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप. इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, you can stay here for 3 years under certain condition for work visa. Apart from this, you can get financial aid, especially for masters and PhD studies. Those who want to study in USA for their masters and PhD program, this is for international students who can apply for fully funded and partial funded scholarship as well. For me, study in USA is not just a study, it is for your career, for your development, for your growth, for study in the country who is advanced nation, which is superpower in the world. American University is not just a building, it's a small town. Alright, एक सिटी की तरह होती है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़. बहुत ही ह्यूज कैंपस होते हैं, ऑलराइट, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज, ऑलराइट, रिसर्च लेबोरेटरीज, स्टेडियम, बिग स्टेडियम फॉर इफ यू वांट टू participate in sports, playing competitions as well. This is extracurricular activities also. Huge laboratories, big classrooms, huge campus. So there are lots of opportunities that you can opt, that you can grab as an international student. आपको एक different level की feeling हो, you can feel at a different level if you are studying in American universities as well. I'm going to talk about how can you study, what you need to do to get admitted, how you can get financial, and if you are international. Let's talk about the level of education, what course and program that you can opt. First is bachelor's program, you can opt bachelor's program. Second, you can also pursue master's studies, also PhD program as well, right? Prerequisite course options and the course details that you can opt for your master's, bachelor's and PhD studies. There are so many course options which are available for your higher education in the USA, like MBA, most trendy course, and जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा करियर है, करियर स्कोप, जॉब प्रॉस्पेक्टस वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एनीवेयर यू कैन वर्क इफ यू ऑप्ट MBA in management, economics, entrepreneurship, international management, global development, entrepreneurship,
There are lots of course options which are available for masters in business administration relevant field. The second course option that you can opt, which is engineering, you can opt computer science. आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए यूएसए इज द ओनली कंट्री which is very famous for computer science relevant field. You can pursue your course in data science, computer science and engineering, computer science, computer engineering. You can work in top MNCs like Facebook, Google, Microsoft as well. The second is civil engineering field. You are already aware about the infrastructure USA का जो है, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा जब आप गूगल में सर्च करते न्यूयॉर्क सिटी, राइट, कैलिफोर्निया सिटी. सो आप बिल्डिंग्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके आर्किटेक्चर को देखिए, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का आपको इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कराई जाती है, राइट. थर्ड इज़ मैकेनिकल, देन केमिकल इंजीनियरिंग. देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्स ऑप्शन विच आर अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, राइट. थर्ड इज़ लिटरेचर. आप लिटरेचर भी ऑप्ट कर सकते हैं. लॉ रिलेटेड कोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, then PhD, medical, and there are so many course options which are available. You can also Google some course which are relevant to your field, right? So you can grab an opportunity for pursuing your higher education in the USA, right? Most importantly, students को query and confusion है कि if I want to pursue my education from USA, so have I to appear for an examinations or not? So let me clear your doubt. There are two categories. It depends on यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, राइट. लेट मी टेल यू बेसिक आइडिया. लाइक दो स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू देयर मैनेजमेंट रेलेवेंट फील्ड लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स रेलेवेंट फील्ड, दे हैव टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच इज़ कॉल्ड एज GMAT, राइट. आपको GMAT एग्जामिनेशन में परस्यू होना होगा, राइट. ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में GMAT की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में GMAT की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. So just don't worry about it. Just go through the यूनिवर्सिटी पोर्टल, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स लिखी होती है यूनिवर्सिटी में GMAT की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. सो डोंट वरी, यदि आपने GMAT नहीं दिया है तो आपके लिए ऑप्शन है. जिन्होंने GMAT दिया है उसके लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, राइट. देन GRE बेसिकली इंजीनियरिंग रेलेवेंट फील्ड के लिए होगी एग्जाम, राइट. सो GRE, SAT जो एग्जामिनेशन है, कुछ यूनिवर्सिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी होती है एग्जामिनेशन, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी नहीं होती है. देन IELTS, TOEFL एंड PTE. सो बेसिकली IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम एंड TOEFL इज द सेम एग्जामिनेशन. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराती है, राइट, अथॉरिटी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे शॉर्ट लिस्ट यू फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और आपको मिनिमम जो बैंड स्कोर करना है अबव 7 आउट ऑफ 9, राइट. सो आपको इस बात का ध्यान रखना है IELTS के लिए. एंड TOEFL एंड PTE आपको अच्छे स्कोर्स करने हैं. जो स्कोर्स है IELTS, TOEFL एंड PTE के आपको वीज़ा में भी काम आते हैं. यदि आप वीज़ा के लिए चाह रहे हैं तो इसमें भी आपको IELTS के स्कोर काम आएंगे ताकि आपका वीज़ा 100% अप्रूव्ड हो. सो इस बात का ध्यान रखना है. सो आपका डाउट क्लियर हो ही गया होगा. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है GMAT, GRE, SAT, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है. उसके अलावा IELTS, TOEFL, PTE भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है, कुछ में नहीं होता है. यदि आपके पास IELTS, TOEFL, PTE नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यदि आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था एंटायर, राइट, प्रीवियस स्टडीज़ आपकी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट in the US every student have specific curriculum. Let me tell you an example. Like if you are pursuing your major subject, if you are pursuing your bachelor studies in business management or marketing relevant field, so आपका मेजर सब्जेक्ट हुआ मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट. साथ में आप एक ऑल्टरनेटिव माइनर भी लेके चल सकते हैं. आप ऑल्टरनेटिव में साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी क्लाइंट्स ऑफ योर बिजनेस ऑफ एंड यू आर डीलिंग विथ योर कस्टमर्स, सो आपको साइकोलॉजिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करने का माइनर में इसलिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आपको साइकोलॉजिकली बिजनेस भी डील करना आना चाहिए. सो ऑल्टरनेटिवली आपका एक मेजर हो गया जो मार्केटिंग है, एंड आप माइनर साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट स्टडी इन USA. Let's talk about finance to study in US universities, like your tuition fees, accommodation, book, living cost. So there are some universities who provide you partially funded scholarship, also fully funded scholarship as well. And there are some universities that provide admission on the basis of full tuition fees.
All right, so let me tell you about cheap universities and costing. So $20,000 to $30,000 per year, which is a very cheap cost of the US universities. And the universities that you can study, like California State University, City University of New York, Texas College, and there are so many universities and colleges as well who provide you education in a very cheap cost, right? Then there are some universities also who provide you full financial aid, will clear doubt about the universities who provide you fully funded scholarship as admission as well. For an example, like University of Florida, that can provide you fully funded scholarship and partial funded scholarship as well. What kind of financial aid as an international student that you can opt? First, which is grant. Second, stipend and monthly stipend. Then स्कॉलरशिप में आपको कवर होगा कैश, ट्यूशन फीस एंड एकोमोडेशन. सो बेसिकली इसको डिटेल में समझते हैं. लाइक स्टाइपेंड आपको मंथली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप आपको एज अ कैश मिल सकता है, राइट, और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पे आउट भी होता है. देन ट्यूशन फीस आपकी रिड्यूस हो जाती है, 0 हो जाती है ट्यूशन फीस. उसके अलावा आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी. ऑल राइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप. फर्स्ट इज नीड बेस्ड एंड सेकेंड वन इज मेरिट बेस्ड. तो कैटेगराइज क्या है? नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है. लेट सपोज यू फॉर बिलोंग्स टू इंडिया एंड यू बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली इनकम, जहाँ पर आपके फैमिली इनकम बहुत ही कम है, आपके फादर प्राइवेट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बट आपकी एनुअल इनकम कम है. सो ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप विथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इज एडमिशन, जिसमें आपको कवर हो जाता है 0 ट्यूशन फीस फॉर एंटायर डिग्री प्रोग्राम, राइट, 0 ट्यूशन फीस. सेकेंड इज स्टाइपेंड, आपको प्रोवाइड होता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए. आपको जो 100% फ्री मील मिलेगा, ऑल राइट. उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाने होते हैं, लाइक आपके फैमिली कंपोजिशन, इनकम सर्टिफिकेट, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, सीधे आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है. सो ये नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप में आ जाता है, जो कि 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपके एकेडमिक्स चेक की जाएगी. यदि आप कोई स्पोर्ट्स मैन है, आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट है मिला आपको, लाइक आपके हाई GPA आपके ग्रेजुएशन में या आपके हाई स्कूल में, वॉलंटियरिंग वर्क में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IELTS एग्जाम आपने दिया हुआ है, आपके अच्छे स्कोर्स IELTS में, आपने GMAT एग्जाम भी क्वालिफाई किया, GR भी क्वालिफाई किया है, राइट. आपको मोटिवेशन लेटर आपको शो करना होता है कि मुझे स्कॉलरशिप आप क्यों प्रोवाइड करें, all right. On the basis of that, they shortlist the student, all right. So you have to make very profile very strong for merit based scholarship as well and for need based scholarship as well, all right. Good news for you, for international students, those who want to work part time in the US. Like during your first year, you can work or job in cafeteria or library. $15 to $20 आप earn कर सकते per hour, right. और आपको जो है 20 आवर्स पर वीक की परमिशन होती है. दैट मीन्स 4 आवर्स पर डे आप वर्क कर सकते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज OPT, विच इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कैंपस रेलेवेंट फील्ड. इट मीन्स यदि ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दैट मीन्स आप ऑफ कैंपस आपकी रेलेवेंट फील्ड में जॉब कर सकते हैं. ऑल राइट, लेट सपोज इफ यू बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट फील्ड, सो आप ऑफ कैंपस किसी कंपनी में जाके आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं प्रिपरेशन करके. सो वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम. आपको जो भी वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ग्रैब कर सकते हैं. दूसरा होता है CPT, विच इज़ करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइक कोऑर्डिनेटर जॉब आप कर सकते हैं वर्किंग ड्यूरिंग स्टडी पीरियड. ऑल राइट, 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर समर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है समर वेकेशंस में कि आप 40 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करिए. ऑल राइट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं मनी डॉलर्स में, और आपको पता ही कि डॉलर के भी रेट क्या चल रहा है, बहुत ही हाई करेंसी है डॉलर. सो दिस इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट दैट यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी सेशन, ऑफ सेशन. ऑल राइट, दिस इज़ द वे टू सपोर्ट योर सेल्फ. लेट्स डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड फाइनेंशियल एड. कौन सी यूनिवर्सिटी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप इज एडमिशन प्रोवाइड कर सकती है, कौन सी पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप इज एडमिशन प्रोवाइड कर सकती है. और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड्स की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, और आपको पता ही कि US की यूनिवर्सिटीज़ है, तो क्या लेवल हो सकता है आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं. सो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ येल यूनिवर्सिटी,
फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे अराउंड 63%, राइट, 63% आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉलरशिप कवर करेगा आपको $200 to $70,000 और $50,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है येल यूनिवर्सिटी में फॉर योर बैचलर्स, फॉर योर मास्टर और PhD स्टडीज़। देन सेकेंड इज़ बोस्टन यूनिवर्सिटी, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप आपकी कवर करेगी $25,000 पर ईयर। बहुत ही अच्छी बात है, आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। देन स्किडमोर म्यूज़िक के लिए बेसिकली स्कॉलरशिप मिलती है एंड इट विल कवर अराउंड $15,000 पर ईयर। फोर्थ यूनिवर्सिटी इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने सुना ही होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप इस एडमिशन प्रोवाइड करती है। और स्कॉलरशिप का नाम भी देख सकते हैं, नाइट हेंसी, राइट। जो स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड अवेल होगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप रिसर्च करिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप जा सकते हैं। ऑलराइट, अब आप अवेल भी कर सकते हैं स्कॉलरशिप, आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं US में स्टडी करने का। देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब हार्वर्ड का नाम लेने से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम किसने नहीं सुना है। ऑलराइट, आप सर्च करिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यदि आपका एडमिशन हो जाता है, मीन्स आप मान के चलिए आपकी लाइफ सेट है। मीन्स हार्वर्ड में ही नहीं, US की कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है तो दैट मीन्स योर लाइफ इज कम्प्लीटली सेट। ऑलराइट, दैन न्यू हेवन फुली फंडेड स्कॉलरशिप इस एडमिशन न्यू हेवन यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रोवाइड हो सकती है। आप प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट, यू कैन फाइंड द न्यू हेवन यूनिवर्सिटी, द स्कॉलरशिप अवेलेबल। देन ड्यूक यूनिवर्सिटी बेसिकली फॉर PhD, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कार्श इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। देन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आप नाम सर्च करिए। देन यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो सकती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मैंने स्कॉलरशिप को क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें आपको एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। सो आप उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, अकॉर्डिंगली आप भी अवेल कर सकते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एज वेल। देन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का नाम सुनते ही आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द लाइफ स्टाइल ऑफ फ्लोरिडा, जहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी मेरिट बेस्ड। सो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता या पता नहीं होता है कि हम US में यदि हमको स्टडी करना है तो हम वहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस्ड और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन में भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यदि आपके पास पैसा है या फिर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो ही आप स्टडी कर सकते हैं USA, UK, कनाडा और एनी कंट्री में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि पता नहीं होता है। देयर इज़ अ रीज़न वी ट्राई टू एंश्योर एंड ट्राई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट who want to study in their relevant field, their relevant course option, and they want to fulfill their dream. So just try to focus on your process. If you are pursuing your graduation, if you are in final year, you can pursue your master's or PhD. Those who are looking for their bachelor studies, they can also start preparing your documentation, right? So best of luck and thank you so much for watching this video. Thank you. Thank you so much for watching my video, and if you like, so do subscribe and thumb a like button. You can also share with your family, friends, right? Thank you so much.